the scriptures. I will try my best to deliver to you all, so that the spiritual spark in all of us can be enlightened. So let's begin. Om Ajnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurumritam yena Tasmai Shri Gurave Namah. I was born in the dark of ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto thee. Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimate Vedvyas Vyasani Maharajiti Namane. Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pashyate Desatarini. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 हरे कृष्णा। आज की कथा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान राम कौन है, और देखेंगे कि श्रीमद् भागवतम में भगवान राम के विषय में क्या लिखा है। तो हमने जब शिवरात्रि के प्रोग्राम में यहाँ पर कुछ क्षण बातें किए, तो हमने बताया कि शास्त्र क्या कहते हैं रिगार्डिंग लॉर्ड शिवा। तो उस दिन हम जाने कि लॉर्ड शिवा इज परम वैष्णव। And we also talked about the creation. From Krishna comes Mahavishnu, then from Mahavishnu comes Garbhodaksha Vishnu, then Kshirodaksha Vishnu, and from this Garbhodaksha Vishnu we have these universes, okay? And from the Vishnu comes Lord Brahma, and from Lord Brahma came Lord Shiva. So today we will see what the Srimad Bhagavatam says about Lord Ram also. Before we begin to that, okay, we'll talk about the story of Parikshit Maharaj, okay, where the Bhagavatam actually starts. Srimad Bhagavatam में परीक्षित महाराज के विषय में बात है, जो सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। तो परीक्षित महाराज he was the last of the saintly kings. परीक्षित महाराज वो राज ऋषि में से आखिरी थे। He left the world in the beginning of Kali-yuga. परीक्षित महाराज अर्जुन के पौत्र है और अभिमन्यु के पुत्र। कथा इस तरह जाता है कि कलयुग के शुरुआत में परीक्षित महाराज को एक शराप मिला था कि उसे 7 दिन के अंदर में तक्षक नाश से वो मरेगा। तो एक राजा होने के नाते वो उसका पास आध्यात्मिक ज्ञान भी था। Despite being a king, he was a saintly king. So knowing that he had to leave the world in 7 days, वो अपने गुरु के पास गए और उनसे पूछा कि what should I do? तो गुरु ने उसको बताया कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। तो गुरु उनको डायरेक्ट किया उस समय पर सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु के पास, यानी कि सुखदेव गोस्वामी के पास। तो जब परीक्षित महाराज जाते हैं, वो एक राजा के भेष में नहीं जाते, वो जाते हैं एक टोटली रिनाउंस्ड त्यागी के भेष में जाते हैं। और जब वहां जाते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जिनके पास शास्त्र के ज्ञान थे, उनसे पूछते हैं कि मृत्यु जिसके द्वार पे खड़ा है
उसको क्या करना चाहिए? What should a dying man do? तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, मृत्यु तो सबके द्वार पे खड़े है राजन। Death is on the doorstep of everyone. Only when the time is right, then it will strike. Then सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को कि मृत्यु सबके द्वार पे खड़े हैं, इसलिए एक मानव को क्या करना चाहिए? ये मानव जीवन जो हमको मिला है, इसमें क्या करना चाहिए? तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि एक मानव का धर्म क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति मानव का धर्म है। भगवान को जानना, अब उससे पहले अपने आप को पहचानना, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमको जाना है, क्यों हम यहाँ पर आए हैं। ये सब सवाल का जब जवाब हमको मिलता है, तब हमें पता चलता है कि हमारा मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। ये जीवन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ आएंगे, पढ़े बढ़ेंगे, नौकरी प्राप्त करेंगे, काम करेंगे, फैमिली बनाएंगे, उसके बाद एक दिन मर जाएंगे। There is no meaning in that. एक बड़ा लक्ष्य हमारे लिए, वो क्या है? What is the main purpose of becoming a human being? What is there that human beings can do and other species cannot do? Talk, right? Yes, we can talk. But animals also talk in their own language. Human beings have intelligence, human beings have knowledge, human beings can question things. Yes. हम पूछ सकते हैं, हम इंक्वायर कर सकते हैं, ये क्या है, ये क्यों ऐसे है। तो भगवान हमको चेतना ज्यादा दिया है, और जीव जंतु के मुताबिक में भगवान हमको ज्यादा चेतना दिया है, ज्यादा कॉन्शियसनेस दिया है, क्योंकि ये एक ही जीवन है, मनुष्य जीवन एक ही है जिसमें हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कल मैंने एक कथा सुना, उसमें राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि जब बारिश होता है, तो बारिश के बूंद किधर जाते हैं? नीचे की ओर आते हैं। बारिश के बूंद नीचे की ओर आते हैं। क्यों नीचे की ओर आते हैं? क्योंकि नीचे समुद्र है। पानी समुद्र से ही एवोपोरेट होकर ऊपर जाता है, बट लेकिन पानी तो समुद्र से ही आया है, तो उसका स्वभाव है कि लौटकर समुद्र में ही जाना। It belongs to the water, it belongs to the sea, so it goes back into the sea. पानी का, जल का वही स्वभाव है। इसी तरह जब आग जलता है तो चिंगारी किस ओर जाता है? ऊपर जाता है, क्योंकि चिंगारी सूर्य का अंश है। आग सूर्य का अंश है, इसलिए वो ऊपर जाता है। सूर्य ऊपर है तो वो ऊपर जाता है। पत्थर अगर हम उठाकर ऊपर भीगे तो वो किस ओर जाता है? लौटकर नीचे आता है, क्योंकि नीचे धरती है, पत्थर धरती का अंश है। इसी तरह हम जीव भगवान का अंश है, तो हमें अपने आप को ऊपर उठाकर भगवान की ओर ले जाना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? भगवत ज्ञान से। तो परीक्षित महाराज जब सवाल करते हैं सुखदेव गोस्वामी तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि मानव जन्म का लक्ष्य क्या है। और श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी भगवान कौन है, परम भगवान कौन है, जीव का क्या धर्म है, वो सब बतलाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कैंटो 1 भागवतम के पहला स्कंद 3रा अध्याय, जो टाइटल है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्णा द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 टाइटल इज कृष्णा द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशंस। उस पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भगवान श्री कृष्ण के बारे में और अवतार के बारे में बताते हैं। तो परीक्षित महाराज
परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सुनते हैं कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, परम भगवान, यानी कि कृष्णा अवतार है, सॉरी अवतारी है। कृष्णा अवतारी है, दो वर्ड है यहाँ, अवतारी और अवतार। अवतारी जिससे बच्चा सब अवतार आते हैं, अवतारी और अवतार। बच्चे जितने सारे हम जानते हैं वो सब अवतार है। द रेस्ट आर हिज एक्सपेंशंस और एक्सपेंशंस ऑफ हिज एक्सपेंशंस, यानी बच्चा जो अवतार है वो सब कृष्णा के एक्सपेंशंस या उनके एक्सपेंशंस है। तो चैप्टर 3 श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 में सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के 6 प्रकार के अवतार है। भगवान कृष्ण 6 प्रकार के अवतार लेते हैं। ये 6 है। पहला पुरुष अवतार। तो शिवरात्रि में जो हमने 3 विष्णु के बारे में बताया, वो 3 विष्णु भगवान श्री कृष्ण के पुरुष अवतार में आते हैं। कर्णोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। कृष्णा इज नॉट इनकारनेशन ऑफ विष्णु। कृष्णा विष्णु का अवतार नहीं है, पर विष्णु कृष्णा से आता है, जैसे हमने उस दिन बताया। दूसरा प्रकार के अवतार भगवान का लीला अवतार है। लीला अवतार में भगवान आते हैं और लीला करते हैं, जिससे मनुष्य को कुछ सीखने का मिलता है। जैसे राम भगवान, वो एक लीला अवतार है। तीसरा अवतार है गुण अवतार, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में हमने पिछले शिवरात्रि में बताया, तो वो 3 गुण अवतार है। इसके बाद आता है मनवंतर अवतार। 5वां है युग अवतार। युग अवतार में भगवान आते हैं और युग धर्म को स्थापित करते हैं। और 6th इनकारनेशन भगवान का है शक्तिवेश अवतार। शक्तिवेश अवतार मतलब एम्पावर्ड ह्यूमन बीइंग। एम्पावर्ड ह्यूमन बीइंग, भगवान एक मनुष्य की तरह ही आते हैं, साधारण मनुष्य की तरह, बट वो मनुष्य को कुछ क्षण के लिए ज्यादा शक्ति होता है जो कार्य भगवान करना चाहते हैं वो करने के लिए। जैसे कि परशुराम इस भगवान के शक्तिवेश होता है। भगवान कृष्णा के बारे में, जो अवतार के बारे में सुखदेव गोस्वामी जब समझाते हैं श्रीमद् भागवतम के चैप्टर 3 कैंटो 1 चैप्टर 3 के शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। फिर वो टेक्स्ट 28 श्लोक में बताते हैं, एते चमसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम विद्यन्ति युगे युगे। एते चमसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम विद्यन्ति युगे युगे। ये तो संस्कृत में है। इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव मेंशन इनकारनेशंस आर आइदर प्लेनरी पोर्शंस और पोर्शंस ऑफ द प्लेनरी पोर्शंस ऑफ द लॉर्ड, बट लॉर्ड श्री कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। एते चमसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, बट लॉर्ड श्री कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। ऑल ऑफ देम अपीयर ऑन प्लैनेट्स वेयरएवर there is a disturbance created by the atheists। तो जो भगवान के अवतार है वो अलग अलग लोक में और इस धरती पर भी आते हैं कुछ कार्य के लिए। जब जब धर्म की हानि होता है तब भगवान आते हैं। द लॉर्ड इनकारनेट्स टू प्रोटेक्ट द थीस्ट। तो जो भगवान पर विश्वास करते हैं भगवान उनको सहारा करने के लिए आते हैं, और जो दुष्ट है उनको भगवान मारते हैं। तो कृष्णा स्वयं भगवान है, वो अवतारी है, और बच्चा सब भगवान के अवतार है। केशव धीरता नरसिंह रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इसका मतलब है ओ केशव। केशव कौन है? कृष्णा। ओ केशव, ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ओ लॉर्ड हरि, who have assumed the form of half man, half lion. All glories to you. केशव धीरता वामन रूपा जय जगदीश हरे। केशव धीरता राम शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो
ये सब श्लोक में लिखा है केशव देवता यानी केशव श्री कृष्ण परम भगवान जो अवतार लिए हैं अलग अलग। त्रेता युग में भगवान राम आते हैं अपने 3 भाई के संग, वो विष्णु तत्व अवतार है और वो आते हैं भगवान धरती पे जनरली ऑफकोर्स दुष्टों की नाश करने, पर मर्यादा पुरुषोत्तम हम कहते हैं भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वो आते हैं भगवान राम धरती पे आते हैं मानव को दिखाने के लिए कि एक मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति, एक आदर्श राजा का जीवन कैसा होना चाहिए। भगवान बहुत दयालु है, वो शास्त्र में बताते हैं कि क्या कैसे करना चाहिए, परंतु हम इंसान नहीं सुनते, कुछ लोग सुनते कुछ नहीं सुनते। तो भगवान स्वयं कर भी दिखाते कि आदर्श पुत्र को कैसे रहना चाहिए, आदर्श पति को कैसे रहना चाहिए, आदर्श राजा को कैसे रहना चाहिए, भगवान स्वयं दिखाते। तो हम आज पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद चैप्टर 3 टेक्स्ट 22। इसमें भगवान राम के विषय में लिखा है, In the 18th incarnation, the Lord appeared as King Ram in order to perform some pleasing work for the demigods. He exhibited superhuman powers by controlling the Indian Ocean and then killing the atheist King Ravan, who was on the other side of the sea. तो शास्त्र बताते हैं कि जब चैप्टर 3 कैंटो 1 में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के भगवान के इंकारनेशन के बारे में, अवतार के बारे में, तो वो अलग अलग अवतार के बारे में बताते हैं। इससे पहले इसमें कहा गया है कि 18th इंकारनेशन मतलब उससे पहले जितने अवतार थे उनके बारे में बता दिए है। तो 18th ला पर भगवान कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान आए, द लॉर्ड अपीयर यानी कौन लॉर्ड? कृष्णा अपीयर्ड एज किंग राम। तो भगवान आए राम के अवतार में, इसलिए आए इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम प्लीजिंग वर्क फॉर द डेमिगॉड्स यानी देवी देवता के सुख के लिए। ही एग्जिबिटेड सुपर ह्यूमन पावर, वो एक मनुष्य की तरह आए बट उनके पास मनुष्य की तरह शक्ति नहीं, उनसे ज्यादा थी भगवान की शक्ति थी, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे। Superhuman powers by controlling the Indian Ocean and then killing the atheist King Ravan who was on the other side of the sea. तो वो कथा हम काफी लोग जानते हैं। देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है। या कहते हैं the personality of Godhead Shri Ram assumed the form of a human being. The personality of Godhead Shri Ram assumed the form of a human being and appeared on the earth for the purpose of doing some pleasing work for the demigods or the administrative personalities to maintain the order of the universe. जो देवी देवता है वो भगवान के सेवक है, वो ये दुनिया में अलग अलग कार्य को संभालते हैं। जैसे इंद्रदेव वो बारिश देता है हमको, वरुण देव हमको हवा देता है, और इसी तरह अलग अलग देवी देवता हमको अलग अलग सेवा हमको करते हैं, हमारे लिए करते हैं, जो जिससे हम जीव जंतु ये दुनिया में अपने जीवन को अच्छी से बिता सके। बट वो सब भगवान के कार्य करते हैं, उनके पास भी जो शक्ति है वो भी भगवान की तरफ से है। Sometimes great demons and atheists like Ravan and Hiranyakashipu and many others become very famous due to advancing material civilization by the help of material science and other activities with the spirit of challenging the established order of the Lord. तो कभी कभी क्या होता है, कुछ एथिस्ट यानी जो भगवान में नहीं विश्वास करते, जैसे कि रावण और हिरण्यकश्यप, ये भगवान को नहीं मानते। वो कहते थे अपने प्रजा से कि वो स्वयं भगवान है, भगवान पर वो विश्वास नहीं करते थे। तो वो दे ट्राई टू चैलेंज, जो भगवान का नियम है उनको चैलेंज करते हैं।
The conditions of each and every planet are different, and different classes of human beings are accommodated there for particular purpose mentioned in the codes of the Lord. तो अलग अलग लोक में अलग अलग सुविधाएं हैं, तो वहां पर अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं. But puffed up by tiny success in material advancement, sometimes the godless materialists challenge the existence of God. Ravan was one of them, and he wanted to deport ordinary men to the planet of Indra by material means without consideration of the necessary qualifications. तो कभी क्या होता है, जब भौतिक ज्ञान से भौतिक ज्ञान से कुछ लोग ट्राई करते हैं कि भगवान का जो नियम है उसके विरुद्ध करने. तो रावण चाहते थे, या कहता है, he wanted a staircase to be built up directly reaching the heavenly planet, so that people might not be required to undergo the routine of pious work necessary to enter that planet. रावण चाहते थे कि एक सीढ़ी बने, एक लंबी सी सीढ़ी बने जो धरती से सीधा स्वर्ग ले पहुंचे. He also wanted to perform other acts against the established rule of the Lord. He even challenged the authorities of Sri Ram, the personality of Godhead, and kidnapped his wife Sita. Of course, Lord Ram came to chastise this atheist, answering the prayer and desire of the demigods. He therefore took up the challenge of Ravan, and the complete activity is the subject matter of the Ramayana. Because Lord Ramchandra was the personality of Godhead, he exhibited superhuman qualities which no human being, including the materially advanced Ravan, could perform. Lord Ramchandra prepared a royal road on the Indian Ocean and with stones and that floated on the water. The modern scientists have done research in the area of weightlessness, but it is not possible to bring in weightlessness anywhere and everywhere. But because weightlessness is the creation of the Lord, by which he can make the gigantic planets fly and float in the air, he made the stones even within this earth to be weightless and prepared a stone bridge on the sea without any supporting pillars. That is the display of the power of God. तो इस श्लोक में बताते हैं कि भगवान राम जब धरती पे आते हैं वो क्यों आते हैं. वो देवी देवता की रक्षा करने के लिए आते हैं और रावण के विनाश के लिए आते हैं. तो भगवान राम रावण को क्यों मारना चाहते थे? क्योंकि रावण पृथ्वी पे हाहाकार मचा दिया था. देवताओं को वो तंग करते थे और मनुष्य को देवी देवता की पूजा से भी रोकते थे. तो रावण, इसमें यह कहा गया कि रावण एक सीढ़ी बनाना चाहते थे कि स्वर्ग कि लोग स्वर्ग डायरेक्ट पहुंच जाए. लेकिन भागवतम में कहता है स्वर्ग जाने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए. लेकिन यह सवाल है कि रावण लोगों को स्वर्ग क्यों भेजना चाहते थे? स्वर्ग में है क्या? स्वर्ग में है क्या जो लोग जाना चाहते हैं? अनिश्चय सही है. स्वर्ग में दुख कम है. और कुछ किसी के पास रणीत? स्वर्ग में शांत है. स्वर्ग में अप्सरा है. ठीक बात है. तो स्वर्ग में लोग क्यों जाते हैं? ये जो भौतिक जगत, हमारा ये जो भौतिक जगत है, ये एक दुख का स्थान है. कोई यहाँ बैठे कह सकता है कि आई एम वेरी हैप्पी, आई डोंट हैव एनी मिजरीज. किसी के पास यहाँ कोई प्रकार का दुख नहीं है. इज देयर एनीवन हु हैज नो सफरिंग्स, नो मिजरीज? नो वन. कैन वी से द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हैज नो सफरिंग्स? नो. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मिजरीज. 4 प्रकार के दुख है. ये 4 प्रकार के दुख है: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि. डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज.
कोई भी हो दुनिया में, कोई भी जीव जंतु हो, चाहे धनवान हो चाहे गरीब हो, सभी को जन्म लेना पड़ता है इस दुनिया में, सभी को मरना पड़ता है, बीच में बीमारी आता है और बुढ़ापा भी आता है। तो ये 4 प्रकार के दुख सभी को होता है। लेकिन स्वर्ग में ये दुख है बट उतना नहीं है, लेकिन से कम है। स्वर्ग में लोग यूथफुल रहते हैं, हमेशा यूथफुल रहते हैं, क्योंकि वहाँ सोमरस है, वो पीकर वो हेल्थी एंड यूथफुल रहते हैं। जन्म लेने के लिए वो मन से ही एक नए व्यक्ति को क्रिएट कर सकते हैं, और बुढ़ापा नहीं होता क्योंकि सोमरस से वो यूथफुल रहते हैं। आयु स्वर्ग में बहुत लंबी होता है, परंतु जब एक मनुष्य का जो मनुष्य जो पुण्य किया है, उस पुण्य जब समाप्त हो जाता है, चाहे 1000 वर्ष हो, चाहे जितने समय का पुण्य आपके लिए है, आप स्वर्ग में उतने दिन वहां एंजॉय करने के बाद में वी हैव टू कम बैक आफ्टर फुलफिलिंग और आफ्टर एंजॉइंग ऑल द फ्रूट्स ऑफ योर एक्टिविटीज, यू हैव टू कम बैक। स्वर्ग से फिर लौट कर ये मृत्यु लोक में आना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग भी ये भौतिक जगत में है। जो एंटायर क्रिएशन है उसका 1 कोटा इज ओनली मटीरियल वर्ल्ड, 3 कोटा इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और स्वर्ग इज विद इन दिस 1 कोटा ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। तो स्वर्ग में अगर हम जाएंगे भी, वी मे स्टे देयर फॉर thousands of years, very long duration, but we still have to come down. और स्वर्ग जाना आसान नहीं है, स्वर्ग जाना आसान नहीं है। श्रीमद् भागवतम अथवा स्कंद chapter 15 text 22, it says there, no one who was sinful, envious, violent towards other living entities, cunning, falsely proud, lusty or greedy could enter that city. The people who lived there were all devoid of these faults. तो ये श्लोक में बताता है कि स्वर्ग में जाने के लिए हमारे पास कैसा कैसा गुण होना चाहिए। We should not be sinful. अगर हम पाप करते तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। Envious, हमारे में ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। मेरे अंदर से सभी को किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मात्रा में जलन तो होगा, अगर सबसे नहीं तो एक ना एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ ईर्ष्या होगा सभी के पास। Violent towards other living entities. If you are violent towards other living entities, यहाँ पर ऐसा नहीं कहता है कि violent towards मनुष्य only, कोई भी जीव जंतु। If we are violent towards them, then we don't have the qualification to reach स्वर्ग। Cunning यानी कि चालाकीपन। Falsely proud, ये दुनिया में सबसे भारी प्रॉब्लम क्या है? वी हैव आवर फॉल्स ईगो। हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है, हम ये शरीर है, तो हम जो कुछ करते हैं ये शरीर के अनुसार, ये शरीर के सोच के हम करते हैं, पर हम तो जीवात्मा है। ये शरीर हमारे एक वस्त्र की तरह है, जब समय अंत होगा आत्मा ये शरीर को छोड़कर चला जाएगा दूसरे शरीर में। It's just like changing clothes. लेकिन हम जब इस जीव में आते हैं, शरीर जब लेते हैं, तो अपने आप को ये शरीर से सब दिन कनेक्टेड सोचते हैं। And whatever we do, we always think about our body first. But हम कौन है? हम आत्मा है। एक शरीर हमारा शरीर है। हम नहीं कहते कि I am this body. Do we say I am this body? We say my body, my hand, my head. तो जब हम my कहते हैं, यानी कि जो अवना है, जो पोजेसा है, वो कोई और है। और जब कोई मर जाता है तो हम कहते हैं, इवन जब वहां पर बॉडी रखा हुआ था है, तो हम कहते हैं वो चले गए, बट बॉडी तो वहीं पर है, शरीर तो वहीं पर है, बट वो चले गए तो कौन चले गए? आत्मा चले गए। तो हम पहला मिस्टेक हमारा सभी का है कि हम अपने आप को ये शरीर के संबंध में हर वक्त सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है, और काफी कार्य जो हम ये दुनिया में करते हैं वे हमें अपने शरीर के अनुसार से ही करते हैं। पहला उसका सोचता है, देन करते हैं।
लेकिन हम ये जीवात्मा है। So we must think about our real self. Our real self is the आत्मा, soul, जो परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है। Falsely proud, और जब हम कुछ अच्छे कार्य करते हैं, हमें कोई अगर कुछ धन्यवाद देता है, कुछ बड़ाई कर देता, तो हम गर्व में हो जाते हैं। That is false pride. जो कुछ कोई भी व्यक्ति कर सकता है वो हमारी क्षमता नहीं है, वो तो भगवान की कृपा है हम पर। भगवान चाहे एक क्षण में सब कुछ ले सकते हैं। हमारे जो एबिलिटीज भी है वो एक ही क्षण में भगवान ले सकते हैं, और भगवान हमको वो दिया है कार्य करने के लिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, जब वो कुछ कर लेता है तो अपने आप को बहुत महान समझने लगता है, और काफी बार वो भगवान को ही नहीं सोचता। हर वक्त हमको ये जानना चाहिए, जो भी कुछ हम करते हैं वो प्रभु भगवान के कृपा से ही हम करते हैं। भगवान अगर नहीं कृपा करेंगे हमको, हमारे ऊपर, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ग्रीडी भी है वो भगवान की, वो स्वर्ग नहीं जा सकता है। पीपल हु लिव्ड देयर वर ऑल डिवोइड ऑफ फॉल्स। तो स्वर्ग जाने के लिए हमको पाप रहित रहना है, जलन नहीं करना है, दूसरे जीव जंतु पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, चालाकी नहीं दिखाना चाहिए, फॉल्सली प्राउड नहीं रहना है, लस्टी और ग्रीडी भी नहीं रहना है। None of us are free from these faults. हम सब में इनमें से कुछ ना कुछ गुण है, अवगुण है। तो स्वर्ग जाना आसान नहीं है, स्वर्ग जाना आसान नहीं है, और स्वर्ग जाना हमारा परम लक्ष्य भी नहीं है। हमारा परम लक्ष्य, मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है? मनुष्य का परम लक्ष्य है कि भगवत धाम प्राप्त करें, भगवान की धाम प्राप्त करें, वैकुंठ जाए। वैकुंठ में अनेक लोक है, परम लोक है गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ पर श्री कृष्णा रहते हैं। और भी लोक है, अयोध्या धाम है, नरसिंह धाम है, और भी लोक है वैकुंठ में। Ultimate goal is to go to Vaikunt, which is free from the four miseries of material world. वैकुंठ में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं है, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज नहीं है। तो वैकुंठ जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है? वैकुंठ जाने के लिए क्या चाहिए? श्रीमद् भागवत गीता 15th चैप्टर टेक्स्ट 5, उस पर श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं, those who are free from false prestige, illusion and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from the dualities of happiness and distress, and who unbewildered know how to surrender unto the supreme person, attain to that eternal kingdom. भगवान ये धाम जाने के लिए क्या चाहिए? हमको फॉल्स प्रेस्टिज से दूर रहना चाहिए। इल्यूशन, माया, ये भौतिक जगत इटसेल्फ इज माया। माया मतलब जो सही नहीं है, टेम्पररी। फॉल्स एसोसिएशन यानी कि जिस संगत से हम भगवान की प्राप्ति नहीं करते, और चीज हमको मिल जाए बट भगवान नहीं मिलते, फॉल्स एसोसिएशन। हु अंडरस्टैंड द इटर्नल यानी सच्चित आनंद। हमको समझना है कि भगवान, केवल भगवान ही सच्चित और आनंद है। हु आर डन विद मटीरियल लस्ट का मतलब है कि अपने इंद्रियों को तृप्त करना, सेंस ग्रेटिफिकेशन। अपने आप को सोचना, समझना और सोचना कि हम वी आर द एंजॉयर्स, बट भगवान स्वयं कृष्णा ही एंजॉयर है। और जब लस्ट नहीं पूरा होता, when our senses are not gratified, then what happens? हमको गुस्सा आता है। जब वो कुछ चाहते नहीं मिलता तो गुस्सा आता है, ग्रीड पैदा होता है।
भागवत गीता में आगे भी चैप्टर में बताते एंगर, लस्ट एंड ग्रीड आर द गेटवे टू हेल। एंगर, लस्ट एंड ग्रीड आर द गेटवे टू हेल। फ्रीड फ्रॉम डुअलिटीज ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। हमारे जिंदगी में कुछ अच्छा होता तो हम खुशी हो जाते हैं, कुछ बुरा होता तो दुखी हो जाते हैं, भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान ये तुमने क्या किया। तो जो कुछ होता है वो भगवान के मर्जी से होता है, हमारे कर्म अनुसार हमको मिलता है। तो वी शुड बी एक्सेप्टिंग इट एज इट इज एंड हु सरेंडर अनटू द सुप्रीम पर्सनालिटी अटेन द इटर्नल किंगडम। तो भगवान के धाम पाने के लिए हमको अपने आप को भगवान के भक्ति में लगाना है। So by developing these pious qualities and surrendering to the Supreme Lord, one can transcend to the spiritual world. It is stated in the Ramayana, Kalyug keval नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। रामायण में बतलाते हैं कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, यानी कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही मनुष्य ये भव सागर में जन्म मरण के चक्कर से निकल सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। In Kalyug, simply by chanting the holy names of the Lord, one can be delivered from this ocean of birth and death. तो इसलिए हम सबको हमेशा भगवान के नाम जप करना चाहिए। तो हम 3 बार महामंत्र जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के पास कुछ सवाल है? If you have any questions, you can ask. Anyone from the audience this side, any questions? अगर नहीं तो we stop here. श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय।